So, a little bit about why we are here today. Okay, how many of you know about the Solve Ninja community? Let's have some reactions. Let's see some hands. You can raise your hands. Okay, how many of you know about the Solve Ninja community? Good job. Okay, fantastic. I can see a lot of hands being raised. Um, the Solve Ninja community is a place where people like us, all of us are change makers. We are working in our own communities to solve local problems, make our communities better and a better place for people to live in, right? So, as a part of this community, so change making is not an easy task, right? All of you are change makers, and it is not at all an easy task, right? Every single action that you take, so you need other people around you to help you out, right? So, this community is exactly there for that. That we will provide, this community is there to support you through each and every step that you take while being a part of while being a change maker, while being a solve ninja, right? So you will get access to, you see right now I can see there are 170 people on this call, right? So this is a peer community that you get access to here, who is there to support you, to celebrate you. Then you get access to hands-on experiences. Like right now, everyone's having a hands-on experience where we're all gathered here to talk about different people's change-making journeys. There are also so many learning experiences that you gain. Up action karke, you get to learn things. Then you get access to mentorship. There are people in the community who basically will help guide you through each and every step of your problem solving. Let's talk about the Changemaker Adda, why we are here in the first place. The Changemaker Adda is a space where we listen to certain changemakers who have been who have been solved ninjas, who have been doing change making, problem solving for a long time, and they share their stories with us. So if you are a listener, you are going to listen to their story, get inspired, get fresh ideas to do change making yourself. Um, if you're a speaker, then we are going to celebrate. Today, we are going to celebrate extremely experienced and really good ninjas who've been with us for the past 6, 7 years. So, firstly, let's introduce all these people whom we are going to speak to today. Chandrika, next slide, please. Firstly, we have रोहित शर्मा. अब ये हमारे इंडियन टीम के रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन I can assure you that the impact he's having is equally valid. He's the founder of something called the Awaz Leadership Labs. He's a lawyer by profession, and he advocates for young people bringing their ideas of justice to life. तो वो लीगल एड पे काम कर रहे हैं. He's working on climate justice. He's working on education rights. He's also running a program, it's a university level program called Justice Innovation 101, where young individuals are introduced to hyper-local legal challenges, right? So, we'll speak to Rohit very soon. Can this this annotation option be changed, Chandrika, by any chance? I can see drawings on the screen. आप लोग जो लोग drawing कर रहे हो, आप लोग I'm sure you're having fun, लेकिन इसको बाद के लिए रखें हम लोग. Let's keep it for later. I'm not able to change it. The host will be able to. Okay. Can we move to the next slide, Chandrika? And let's meet our next change maker, next speaker for the day. The other slide, next, the other side, Chandrika. Okay, and we have Smriti with us. Smriti is from Bangalore. Has actually been a Solve Ninja for the past 6 years, and she's an advocate for mental health. Smriti has been associated with the Solve Ninja movement for a very long time. She has founded something called Project Mind Matters, which builds awareness around mental health. And I found out very recently that Smriti is also an author. She's a published author. She has written a book on mental health, and she hopes to raise awareness and provide
support and resources to people who are in need, who need mental health support, right? Okay, let's meet our next speaker then. After Smriti, so unfortunately, Rahul is unable to join us. He had a medical emergency. I would have loved to share his story with you, but he is unable to join us. So we'll move on to the next person and the last speaker of the day. We have Priyanka. Now, Priyanka is pretty much in the Reap Benefit world, a celebrity. She has been doing change making for the past 6, 7 years. Actually, perhaps a little more than that. She's from Bihar. She's the founder of this organization called Gram Chetna Andolan, where they have been mobilizing rural communities towards Gram Swaraj. What Gram Swaraj means is making communities self-sufficient, right? And she is also an alumni of the Indian School of Democracy. Smriti, thank you so much for joining, firstly, and welcome back. I think, Smriti, you have been associated with Reap Benefit for the past 6 years, right? Six, probably a bit more. And you are currently the founder, you have founded an organization that works on mental health, right? Would love to know, how did mental health become such a priority for you personally? Okay, so I think first I started my solving journey with understanding, like I worked in other areas of like trying to solve social issues in water, waste management, civic issues. And only after I got all that experience is when I had like the confidence to start my own organization. And like I, over these years of experience, I realized mental health is something I want to work on because of two reasons mainly. Back in my school, I think this is also something most of the students face. There was a lot of bullying and peer pressure that used to happen to a lot of students on, comparing students with each other in terms of marks, looks, what they bring to school, as well as bullying, trying to make someone else feel upset. So, and nobody was able to teach us how to deal with it, or they weren't able to recognize that something like this was going on. So I realized there is some sort of a gap, and that needs to be covered. So that was one of the reasons. And second reason is I was basically interviewing few people who have been through mental health issues and few others who are counselors or therapists. So people who help the rest of them get over their mental or emotional health issues for my book. And again, I sensed the same gap where nobody is teaching people how to deal with their like emotions or mental health. When someone is sad, when someone is angry, we don't know how to channelize it because nobody has taught us that. So that's how I recognize it, and that led to the start of Project Mind Matters. So where they're introducing the concept of psychoeducation into the system, so all of us know how to deal with our emotions and how we feel. I'm very curious. Like, until I have known you for a while now, right? We have known each other for more than a year, almost a year now. Yeah. And I never knew you were an author. I found out like maybe 2 days ago that you've written a book on mental health. I mean, that is a fantastic achievement. And those who are in the chat, I would encourage you to please use your emojis. Unmute mat kijiye, don't unmute yourself, but use your emojis to show some appreciation for our speakers here. Yeah. But really, really amazing, Smriti. Can you tell us more about the book? Like, what led you to, write it, and also what is it about? Okay, And if you remember, I told you I want a signed copy. definitely. Uh, so basically, again, we saw the lack of awareness where people are scared to speak about mental health issues. And we realized we have to start spreading awareness in some manner, which is why we thought book might be a good start. So my cousin and I co-authored it, and that's how we started writing the book. Mainly, what the book has are cases, like
instances of people who have been through an issue and gotten over like depression, anxiety, and some of them have cases where their parents had developed dementia, Alzheimer's. So the book is basically a sign of hope in the sense that there are a lot of people who go through these issues, but that's not the end of it. They get over it, and there is like some hope, and people can deal with this now. So I think by reading all these stories of these individuals, it's like inspiring and motivational to for someone who's going through something to read it and stay on the path that things will be okay at some point, and how to also seek help. Okay. Thank you so much, Smriti. I mean, I think at this age when you are in school, it is such a sensitive age in terms of, the smallest things, the experiences that you have at that time can leave a lasting impression for the rest of your life. And we will come back to this aspect of your life, right? And I would want to know from you how did that you go from there, from dealing with these issues yourself to a point where you are now hosting spaces for other people who are dealing with similar issues, right? And we will come back to that. So now I have finally found the captain of the Indian cricket team, Mr. Rohit Sharma. Rohit, welcome to the Changemaker Adda. Great to see you here. Rohit is a lawyer, like I said, who has studied from one of the premier institutions for law in Calcutta called NUJS. And I think, Rohit, you were working with one of the most reputed law firms in India, Cyril Amarchand Mangaldas, for a couple of years, if I'm not wrong. Is that right? Yeah. So I'm very curious to hear this, like from there to starting Avaz Leadership Labs, right? Leaving a job which millions of lawyers probably in India are aspiring to, get. From there to starting something of your own, and leaving that financial security, like how does that work? What led you to do it? I wanted to first check. Thank you so much, Thiman, for the introduction. Just wanted to check if people are comfortable with English and or Hindi. Like if people understand Hindi also. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. I sir. think, Rohit, you can use a Yes, mix. sir. There are people in the comments who are translating. Okay. I got it. समझ में आ गया मुझे सब लोग को हिंदी आप लोग आती सब है. म्यूट कर लीजिए प्लीज, हाँ. एक्सेप्ट फॉर मैं इंग्लिश में बात करूंगा जो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग बोलते हैं. तो बेसिकली मैं कॉलेज में जब पहुंचा था फर्स्ट टाइम, लाइक वन ऑफ द struggles which I was having was also that I was not able to speak in English. It was very difficult to understand some of the subjects. Um, but one thing which actually helped me is to understand ki what is the comparison of someone like me and what is the comparison of someone who is coming with a privileged background. तो आई थिंक एक चीज़ जो समझ में आ रही थी कि यार सबकी जर्नी बहुत अलग अलग थी. लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स भी घर पे इंग्लिश बोला करते थे, उनके स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे बहुत जल्दी इंग्लिश का एक्सेस मिल गया था. एंड तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कंपैरिजन शायद इतना हेल्प नहीं करेगा. और कॉलेज में आई आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स. बट अगर एक्चुअली आप बोलोगे कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी और मैं लोगों के लिए काम करने के लिए क्यों आगे शिफ्ट हुआ, आई थिंक आई फाइंड दिस कनेक्टेड टू अलॉट विद माई चाइल्डहुड. बिकॉज माई मदर यूज टू टीच एट अ नियर बाय स्कूल जहाँ पे वो बस्ती के बच्चे आते थे, और उनको वो फर्स्ट पहली बार ऐसा था कि मैंने देखा कि भाई कैसे लोगों पे इन्वेस्ट करके सिस्टम्स बनाए जाते हैं. मतलब तो मैंने देखा कि बस्तियों में मम्मी पढ़ाती थी पास के बच्चों को, और वो बच्चे फर्स्ट थे उनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में जो पढ़ाई कर रहे थे. और फिर धीरे धीरे वो बच्चों ने वो दे एस्केप पॉवर्टी, देन दे स्टार्ट वर्किंग, एंड देन आई विजिबली सॉ कि भाई हाउ गिविंग बैक टू सोसाइटी also was very of course it came with a cost for my mother's professional career, of course, but at the same time she really felt really fulfilled. उसके अलावा my father also used to work closely with farmers. मध्य प्रदेश में ही वो काम करते थे किसानों के साथ, बीज वगैरह देने का काम करते थे. तो उन्होंने एक चीज़ जो सिखाई थी, ये सिखाया था कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अर्न लेस मनी बट नॉट टेक अ रॉन्ग मनी. तो आई थिंक वो एक वैल्यू था कि किसी एक इंसान का भी दिल मत दुखाओ एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड कि ना
इट विल कम बैक टू यू। तो आई थिंक वो वैल्यूज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में थे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने लॉ फर्म की नौकरी भी इस रीज़न से करी थी, क्योंकि मेरे को अपना लोन चुकाना था और मैं चाहता था कि थोड़ा सा घर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक चेंज मेकिंग जर्नी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि हम अपने आसपास वालों के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं। आई थिंक उसके बाद हम लोग शायद पूरी दुनिया के टेंशन के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वही चीज़ एड्रेस करी कि मेरे घर पे क्या क्या कंसर्न्स हैं, एंड देन I left my job. So I think it was always there in some way. Like I knew that I would end up here. So it's very interesting, Rohit, because I think parents, of course, are one of the key influences in our life, right? How we are brought up, our upbringing plays a major role in what the people we end up being. Lekin on the flip side of it, especially when it comes to careers, in the case of Indian, youth like us, parents play a key role in taking decisions, right? Especially if you're taking a decision like leaving a cushy job and moving into this sector. So I would love to know, your parents were, of course, an influence in this journey, but when you took this decision, what was their reaction? So my mother actually thought he has lost it. Like that was the first reaction, that when I told, because I was also the one of the few first one to go out of my state to study in my extended family. So when I got job, it was very amazing because my job was getting maybe my father's say 7 8 years of annual income, and to have that conversation was little difficult for me, to be honest. So but then Yeah. I keep on reasoning with her that this is like, I want to maintain my health, I want to give back to society. I keep on mentioning how I used to sell a lot about my personal time, that see mom, if I'm running my own initiative, I will have control over my life. Of course that's a lie. I know that running an initiative also takes a lot of your mental and physical bandwidth. But at least I used to tell her that I want to maintain my health, I want to take out my time. And of course, I think with my father it was fairly easy. I told them that पापा मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, मेरे को इतना कमाना है कि मैं आराम से रह सकूं। और मैं मतलब आई वांट टू स्लीप वेल एट द एंड ऑफ द डे, आई वांट टू स्लीप कंटेंट। so that was very easy, and he was like, okay, if you believe you are happy with this, go for it. And I also keep on I have a lot of debate with my father on caste, gender and religion. So I always use that a lot. Like I always use his language to convince to my side that, see, even religion says that we have to give back. Karma also think that, even though I might not be believing in a lot of these things, but I often use that in my discussions. So with father it was fairly easy. Wow, I think you got lucky because I don't think most parents would have been as accommodating. But we'll come back, Rohit, to the work that you're currently doing. I'm very curious to know. I think you're working with a lot of youth, young lawyers right now, helping drive the idea of justice in their minds. So we'll come back to you in a second. I would like to quickly have a conversation with Priyanka. Priyanka, if you could turn on your video, आप अगर एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं, please. Uh, Priyanka, are you there? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए. Thank you. हाँ मैं हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्रियंका. तो आपकी जर्नी के बारे में तो हम सब ने, दोज हु हैव, जो लोग रिच बेनिफिट के का हिस्सा रह चुके हैं, एवरीवन हैज रेड एट सम पॉइंट और द अदर, राइट? यू आर फ्रॉम बिहार, राइट? आप सीतामढ़ी से आते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू स्टार्टेड योर जर्नी अराउंड 2010 के अराउंड. आप जब अपने गांव से निकले थे, लेकिन आई वुड लव फॉर यू टू टेल आवर लिसनर्स कि वो जो गांव में वो निकलने तक, बड़े होने से निकलने तक जो वो जर्नी था, इफ यू कैन टेल अस व्हाट मेड यू लीव एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट. थैंक यू शुक्रिया सभी को, आप सब यहाँ पे हैं और सुनने के लिए। तो मैं प्रियंका हूँ, जैसा कि धीमन ने बताया है, मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला से आती हूँ। और करीब करीब कोई भी अगर आवाज न जाए तो बेझिझक बोलना है, और कोई भी सवाल आए तो उसके लिए भी। तो
मैं पंजाबी नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी। डोंट वरी प्रियंका, वी तो हैव पीपल इन द कमेंट्स हु आर ट्रांसलेटिंग, तो आप बोलिए, यू ओके ओके। स्पीक इन विच हाँ, एवर। तो करीब करीब मेरा जो बचपन रहा है वो गांव में बीता है, और लगभग 14-15 साल तक, और 10वीं कक्षा तक। और जब मैं वहाँ पे थी तो गांव के जीवन में मतलब वो एक लड़का और लड़की में फर्क क्या है उसको आप डायरेक्टली फेस करते हैं कि घर में बेटा को कितना महत्व दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, और बेटी के ऊपर कैसा सोचा जाता है। तो मैं 4 भाई बहन हूँ, 2 भाई 2 बहन। तो मेरी दीदी की शादी ऐसे एकदम अर्ली एज में हो गई थी, और उसके बाद से मैं अपने पापा को परेशान होते हुए देखा कि जब मेरी कुछ उम्र हो जाएगी, लगभग मैं 2008 की बात कर रही हूँ, जिस समय मैं 8वीं कक्षा में थी, तो मैं उसको मेरी शादी के लिए परेशान होते हुए दिखा। तो उस समय मैं चिंतित थी, और चिंतित इसलिए थी कि अभी क्यों हो रहा है, और दूसरा कि मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम 10 साल तक ऐसे परिवेश में रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत एक एक लाइन से सिखाया जाता है। आपके लिए एक बाउंड्री होती है और आप उस बाउंड्री में ही रह सकते हैं। तो आपके न सपने देखने का कोई अधिकार है, न बाहर निकलने का कोई अधिकार है, न बोलने का कोई अधिकार है। तो ऐसे माहौल में रहो जहाँ आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, आपके साथ एकदम अब इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल की हिंसा की जा सकती है, आपको अपने दिनचर्या के भाषा में कुछ भी बोला जा सकता है। तो मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी हूँ। और तो मेरे से जो बड़े और मेरे से जो छोटा भाई था उसको बाहर रख रहे थे, होम डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ाई कर रहे थे, और मैं घर पे, और मेरी से बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। लकीली मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भैया को थोड़ा संज्ञान में आया कि शायद ये जो भी मेरे परिवार में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, और वो नाइंसाफी है। मतलब दो बेटा घर के पढ़ लेगा और घर की बेटी नहीं पढ़ेगी तो ये नाइंसाफी होगी। तो उन्होंने पापा से बात करी कि शायद हम जितना खर्च शहर में रह के कर रहे हैं उसी खर्च में हम प्रियंका को भी पढ़ा सकते हैं। तो मैं अपने भाइयों के द्वारा हाईजैक कर ली गई, और मैं हाईजैक होके गांव से अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंची पहली बार। और उस समय तक जीवन में क्या करना है नहीं करना है कुछ आइडिया नहीं था। और एक था कि हाँ पढ़ लिख के थोड़ी मतलब बेहतर इंसान बननी है। जैसे ही मैं 2010 और 11th में 10th में थी, और उस समय तक अलग अलग सपने बनते हैं कि कभी डॉक्टर बनने का मन करता है, कभी इंजीनियर बनने की राह चुनते हैं, कभी कुछ। तो अचानक से मेरे सामने से ऐसे एक महिला सरपंच की कहानी सुना मैंने, और मुझे लगा यार मुझे तो महिला सरपंच बननी है अपने गांव की। और महिला सरपंच क्यों बननी है, तो क्योंकि हमारे गांव की, हमारे देश की आधी आबादी महिला है, और जिसके मतलब उनका कुछ भी ऐसे मतलब अधिकार नहीं है। मतलब उनके नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, उनके नाम पे इलेक्शन होते हैं लेकिन वो लीड नहीं करती है, उनको मौका नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी इतनी अपने घर परिवार में देखी हूँ कि जहाँ मेरी माँ को घर से बाहर निकलने की इच्छा थी, उनको नहीं निकलने दिया गया। वो इतनी अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी महिला है, उनको आंगनबाड़ी में जाना था और पापा ने डायरेक्ट मना कर दिया। तो हम ऐसा स्पेस कैसे बनाए जहाँ पे महिलाएं आए, और उनके नजरिए से गांव कैसा दिखता है, उनके नजरिए से एक देश कैसा दिखता है, उनके नजरिए से एक सिंपल स्कूल कैसा दिखता है, उस पे बातें हो। और जहाँ पे पुरुषों का अड्डा है, जहाँ पे गांव के चौक चौराहे पे, गांव के छोटे मार्केट में आप जाएंगे तो आपको वहां पे सिर्फ चाय पीते पुरुष ही नजर आएंगे। तो वहां पे कैसे महिलाएं जाए, वहां पे वो भी जाके अपना स्पेस क्लेम करे। तो मेरा एक इंस्पिरेशन था कि मैं अपने गांव की मुखिया बन के, और मैं इस प्रोसेस के को कर पाऊंगी। तो एक सपना था जिसपे मैं कभी बात नहीं करी, और इतना वो वोकल मैं नहीं थी, और डर था। वही डर आया था डर इसलिए था क्योंकि समाज, मेरी फैमिली बहुत पैट्रियार्की है। तो आप सपने क्या देखते हैं उनको अब एक फ्रीडम के साथ बोलना भी कठिन था कि शायद मना कर देंगे, शायद जज करेंगे, और जजमेंट से व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत डर लगता है। शायद वो हमें ग्रो करने में बहुत रोकता है, और मुझे रोका भी। तो एक डर था। और लकीली मतलब भाइयों की मदद से मैं बाहर निकली पढ़ने के लिए, और सपने बने, और मैं देश की सबसे टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस में पहुंची।
और मैं अपने खानदान की, अपनी लार्जर फैमिली की पहली बेटी और पहली लड़की हूँ जो 10th कर पाई और ग्रेजुएट हूँ अभी भी। और तो और देश के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला इसमें मेरे भाई और मेरे और दोस्तों का सहयोग से। और मैं लकली गांव से उठ के दिल्ली आई। दिल्ली में मैं मिरांडा हाउस में पढ़ी। और था कि जो गांव लौटने का सपना है वो अभी भी अंदर है, कि कैसे गांधी की जो स्वराज की जो कल्पना है या उसको कैसे उतारा जाए गांव में, और गांव में कैसे एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ पे महिलाएं खुल के बात करें, हमारे यूथ है वेरी वो नाइस काम करे, वो काम करे। और सबका जो एक है कि कैसे हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े हमारे सोसाइटी में, हम एज ए सिटीजन हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको कैसे ओन करें। तो हम अभी उस समय तक मैं कॉलेज में थी और 2016 तक। और उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, यूथ अलायंस है, रिप बेनिफिट है। रिप बेनिफिट से मैं 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब मैं गांव लौट चुकी थी फाइनली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। और उससे पहले पढ़ाई लिखाई मतलब चल रहा था। और उसके बाद जब मैं गांव लौटी और लगा कि मेरे गांव में एक कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन किसी चीज में नहीं दिखती है, लीडरशिप क्राइसिस है, कम्युनिटी के पास पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। तो जैसे हम ना बात करते हैं कि एक सिंपल उदाहरण है कि रोड किसका है, तो हम कहते हैं मतलब अक्सर होता है कि रोड हमारा खुद का नहीं है, सरकार बनाती है, सरकार का है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि रोड पे हम रोज चलते हैं, तो कैसे हम उसको अपना पाए। ये रोड, ये जल, जंगल, जमीन वो हमारा हमारा खुद का है, तो हम उसको बचाने के लिए काम करें। और तो मतलब ये है, तो हम उसी पे कैसे हमारा पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा, हम कैसे उसको ओन कर पाएंगे अपने चीजों को। हम ये करते हैं और यही रहे कि गाँव से भी करने की। प्रियंका, थैंक यू। हम आप जो अभी काम कर रहे हैं वो हम्म। उस पे हम आएंगे, ठीक है। लाइक ग्राम चेतना आंदोलन का तो पूरा अभी एक हमें सुनना है कि आप अभी क्या काम कर रही हैं, आप शायद हम्म। वापस सीतामढ़ी जाके अभी काम कर रही हैं। लेकिन एक थीम जो आई थिंक रोहित की कहानी से और आपकी कहानी से निकल के आ रहा है, जैसे रोहित ने बताया कि अ, उनके पेरेंट्स, रोहित, योर पेरेंट्स वर अ बिग इन्फ्लुएंस इन द डिसीजंस यू टुक, द द लाइफ यू हैव बिल्ट फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। प्रियंका, आपके केस में आपके भाई लोग थे, आपके बड़े भाई लोग थे जिन्होंने आपको काफी सपोर्ट किया, उस स्थिति से निकलने में मदद किया। So, Smriti, I will come back to you for this because you're the only missing link right now. But like, I would love to know, do you have any such figures? It might be parents or your, but do you have such people in your lives who have been sort of the wind in your sails, who've helped you get to where you Yeah, are? I think like having a family that supports you into getting into this field helps. My grandparents, like my granddad, he used to work in one of the orphanages called Seva in Action. So as a child itself, I've seen all my like family members like donating somewhere or donating their time somewhere. So I think while I was growing up itself, that empathy to make a change to help someone out has been there in me. And along with that, people who inspire you itself. So it doesn't have to be someone big. They don't have to be in newspapers or on TVs, you know. Someone who's like your neighbor or your friend who's classmate, Hmm. senior. Yeah, I think all of them have been very inspirational figures as well. So I would think I was blessed with the supportive family as well as my, seniors and also people around me who were trying to make a change. Speaking of that, Smriti, I'll just continue with your journey once. So you shared about how bullying and peer pressure in school played had an impact on you, a lasting impact on you, even once you graduated. So just want to know, like, what was it in the journey? What were those few triggers or milestones where you felt like, okay, I am dealing with this today, but now you are the one who's like hosting sessions for other people
who are in need of, help with their mental health. So what were those milestones in this journey? I think first I recognized I wasn't the only victim here. There were so many around people around me who were feeling the same way, going through the same issue. So I realized it's a community issue. It's not just an individual. And right after that, um, it was about I can either cry about all the issues in the world or I can start making a change towards it. And I think that was a more positive approach, and I think that's how I started and got into it. So I would love to know, like, all taking these actions on the ground, civic actions, you're talking about, I'm assuming you're talking about black spot fixes and these actions that, we take at REAP. What do you think it, at any point through your journey, it helped you deal with the, sort of the leftover effects of the bullying from school or the mental health issues you dealt with? Was it helpful? And if so, then could you tell us how? Um, I think so, when I had to get a black spot like fixed or reach out to my corporators for an issue like few years ago, that sort of made me come out of my comfort zone to go approach like an authority, speak up about the problem instead of, being scared or hesitant. And I think once I went, spoke to the corporators, spoke to like I think AEE, yeah, AEE, like the executive engineer who's in charge of the issue. After the issue was solved, is something I gained that confidence saying, okay, if I actually go speak out and voice out the issue, and they are responsible for fixing the issue, and it got fixed. So after that, that built my confidence saying, similarly, I can also fight the other kind of issues that me or other people have been through or been going through. So I think that was the link between how, both sort of helped out. Okay, fantastic, Srinidhi. And we'll come back to that story with Project Mind Matters. Rohit, quickly, we would love to know now what Awaz Leadership Labs. You told us why you shifted from your, career, your proper legal career, into something where, the future must have been uncertain when you started, working with young people. It was a new domain. So could you tell us a little bit about what you do, and also, what are the issues you're currently working on, and why picking to work with youth specifically? तो आई थिंक सबसे पहले तो कॉलेज जब लॉ फर्म से मैंने आई लेफ्ट माई जॉब, देन आई वाज वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जेनथ सोसाइटी फॉर सोशल गिल एम्पावरमेंट। जब हम लोग माइग्रेंट क्राइसिस पे काफ़ी काम कर रहे थे, उस टाइम पे माइग्रेंट वर्कर्स सब अपने अपने घर जा रहे थे और हम लोग उनको ई पास बनवाने में काफ़ी हेल्प कर रहे थे। एंड दैट टाइम वी क्रिएटेड रिपोर्ट कॉल मध्य प्रदेश माइग्रेंट रिपोर्ट। और माइग्रेंट रिपोर्ट बनने के बाद आई जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जनसाहस। तो जनसाहस के साथ मैं काम कर रहा था कॉलेज के बाद, उस लॉ फर्म वाली जॉब के बाद। और जब मैं माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी से मिला तो मुझे समझ में आया एक चीज़ कि कानूनों को कितना भी आसान बना दिया जाए वो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे सिटीजन से। लाइक मेरे को दिक्कत तो ये थी कि कानून इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, हमेशा इतनी मुश्किल भाषा क्यों बोली जाती है। बट ये भी लग रहा था कि कानूनों को आसान भी बना दिया जाए तो भी हम लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। और मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था, एक जिसमें हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सारे 50 प्रोमिनेंट जजमेंट्स जो हैं उनको 5 भाषाओं में रिलीज़ किया था। फिर जब हम लोगों को रियलाइज हुआ कि कानून को रिलीज करने के बाद भी इट इट गॉट वेरी लेस पब्लिसिटी। लाइक ऑफ कोर्स इट वाज वेरी गुड इन लॉयर सर्कल, बट इट नॉट रियली रीच टू द सिटीजंस which फॉर which it was targeted. So then I realized, and I'll be very honest with you, I was reading a lot of organization across the world, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं समाज में। आई वाज रीडिंग अबाउट दोज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बहुत फिट बैठ रहे थे वो ये था कि आप ना आइडिया की जगह प्लेटफॉर्म ऑफ आइडियाज बिल्ड करो। यू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आइडियाज लेके आ सके। तो जैसे यहाँ पे सॉल्वेंजा जितने भी हैं 100-150, ये इन सब के लिए सॉल्वेंजा इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, राइट, वेयर सो मेनी आइडियाज आर बी नर्चर्ड।
तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि शायद मेरा एक बहुत बड़ा रोल ये हो सकता है कि मैं कम्युनिटी और लॉ के बीच में इफेक्टिव ब्रिजेस बना सकता हूँ। आई कैन इनेबल मोर यंग पीपल who are running their own idea, who have their ideas in human rights or citizens. I can build an ecosystem for them. And the motivation was purely personal in the sense कि I realize कि इंडिया में लॉ स्कूल्स में एक जो इशू हो रहा है आजकल वो ये भी हो रहा है कि जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स में काम करना चाहते हैं, सिटीजन के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करें। और वो सवाल, जैसे हम लोग भी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर क्लाइमेट में काम करना है तो कि कहाँ से शुरू करें, राइट? इवन दो आई एम वेरी पैशनेट, तो आई रियलाइज दैट क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑफ यंग स्टूडेंट्स स्लैश यंग ग्रेजुएट्स जो लॉ में पढ़ रहे हैं और अपने आइडियाज बिल्ड करें। तो करेंटली अराउंड 12 स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स आर एंड लॉ ग्रेजुएट आर बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। एक टीम है जो पूरी डिसेबिलिटी पे काम कर रही है कि लॉ कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सके। एक टीम है जो क्लाइमेट पे काम कर रही है कि क्लाइमेट कॉन्शियसनेस युवाओं में कैसे लाए, लीगल कम्युनिटी में कैसे लेके आए। एक टीम है जो सिर्फ जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स करा रहे हैं, जस्टिस इनोवेशन 101 करके, जो 3 दिन का पूरा एक प्रोग्राम होता है कि बच्चों को बताया जा सके कि भाई जस्टिस मेकिंग भी कूल हो सकती है, जनता के लिए सोचना या सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को समझना वो भी कूल हो सकता है, जो आप लोग भी इन अ वे कर ही रहे हैं। तो आवाज इज हैज नाउ बिकम अ प्लेटफॉर्म ऑफ आइडियाज एंड वी दिस ईयर वी आर गोना क्लोजली वर्क विथ 5 founders एंड ऑल्सो कंडक्टिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री कि जहाँ से बच्चे जो भी ह्यूमन राइट्स में या किसी भी सोशल इश्यूज में, जेंडर में, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए एक नर्चरिंग नर्चरिंग वाला रोल प्ले कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। So, is it the idea of making the law more accessible to people? लोगों तक ज्यादा law पहुंचे, या फिर is it more to do with the idea of justice? Like, because the legal language एक आम इंसान के लिए समझना काफी, मतलब, it's easier to give up. And so just want to know, like, was that the purpose with which you started? तो पर्पस वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस कि समुदाय के लिए कानून की भाषा को आसान कैसे बनाया जा सके। फिर समझ में आया जब आसान बनाई तब भी बहुत मुश्किल है समुदाय के लिए, तो हमें एक हम्म। ब्रिजेस का निर्माण करना पड़ेगा, एक बीच में इन दोनों के लिए एक स्टेक होल्डर का निर्माण बोलें या उनको सपोर्ट बोलें वो करना पड़ेगा, जिससे कि और आसान तरीके तक कम्युनिटी तक पहुंच पाए। एंड दैट स्टोरी नीड्स टू कम इन द लैंग्वेज ऑफ व्हाट कम्युनिटी अंडरस्टैंड, दैट कैन नॉट बी व्हाट आई एम थिंकिंग इज जस्टिस टू देम। तो शुरुआत इसी से हुआ था कि कानून को आसान बनाना है, बट समझ में आया कि उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि ब्रिजेस कौन से हैं जो उस भाषा को समुदाय तक, कम्युनिटी तक लेके जाएंगे। तो वही ये कोशिश हम लोग बहुत सारे कॉलेज के साथ क्लोजली काम भी कर रहे हैं कि उनकी लीगल एड सोसाइटीज़ कैसे एक्टिवेट हो सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेजेस में जो भी यंग पर्सन है जो एक्साइटेड है किसी भी चीज़ में राइट्स बेस्ड काम करने में वो कर सकें। हम जस्टिस वस्टिस जैसे भारी भरकम शब्द अभी फिलहाल शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे प्रोग्राम का नाम जस्टिस इनोवेशन है, बट हम चाहते हैं कि बच्चे बस ये डिस्कवर कर सके कि मैं अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में क्या कर सकता हूँ। आई थिंक आई एम वांट टू स्टार्ट विद दैट कि आप इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअली लेवल पे कर सकते हो। तो दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। And did आई you होप। ever personally experience a case where मतलब somebody was unable to access, I'm using the word justice again at the risk of, but did you personally ever experience that happening to somebody where they were unable to access justice because of their lack of understanding or lack of access? ऑफ कोर्स आई थिंक ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग ना जेल जेल में देखते हैं कि जो लोग जा रहे हैं जेल में सारे खराब लोग ही हैं, हमारा ऐसा मानना होता है कि भाई जेल में गए तो गंदे ही लोग होंगे, यही होगा। पर अगर मैं आपको एक हकीकत बताऊं देश में, तो 70% से ज़्यादा लोग जो जेल में रहते हैं वो 10वीं पास से कम है। बहुत सारे उनमें से भी 65 से 70% लोग वो हैं जो एक तबके के आते हैं, जो शायद आदिवासी समुदाय से, दलित समुदाय से या फिर मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनको जिनको एक चीज़ तो ये था कि ढंग से एक्सेस नहीं मिला सही समय पे, दूसरा सही वकील नहीं मिला सही समय पे, और तीसरी चीज़ थी जब पुलिस के पास गए, किसी भी अधिकारी के पास गए तो उन्होंने उनकी सुना नहीं। और यही कारण है कि हमारा मानना ऐसा है कि क्राइम एज ए चीज ऐसी नहीं है कि जो व्यक्ति सीख के आता है ना, बचपन में सब लोग बच्चे होते हैं, सबको खेलना होता है, सबको मस्ती करना होती है, पर समाज में जिस तरीके से
अहिंसा हो, जैसे हिंसा हो रही है, चाहे वो लैंगिक हिंसा हो रही है जिसके बारे में मेरे स्पीकर्स बाकी ने बताया, चाहे वो उनको या कास्ट के आधार पे हिंसा हो रही है, वो सब चीज़ें हम लोग दिखते नहीं है, पर वो काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है हमारे डेली टू डेली वर्क पे। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ एक सेंसिटिविटी बिल्ड करना धीमान, कि मैं चाहता हूँ उन युवाओं में जो लॉ पढ़ रहे हैं या जो भी युवा हैं उनमें सेंसिटिविटी क्रिएट करना, चाहे वो क्लाइमेट के प्रति हो, बट चाहे वो डिसेबिलिटी के प्रति हो, बट ओवरऑल वो सेंसिटिविटी कि सिटीजन्स के लिए हम लॉ करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि लॉ के माध्यम से एक मूवमेंट, एक सिस्टम में सिस्टमेटिक शिफ्ट आ सके। तो दैट इज व्हाट, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, सॉरी। It does. It does. Thank you. And it's really inspiring because, it is it is a very technical field, and it is almost every day आप खबरों में देखते हो कि justice delayed is justice denied, news along those lines, and it has been a recurring theme कि, and I think it relates also to आप जब कह रहे थे कि आपने अपने यूनिवर्सिटी में प्रिविलेज को लेकर एक स्टडी किया था, राइट? जी जी। हाउ प्रिविलेज एंड जस्टिस के बीच में जो लिंक है, एंड एक्सेस टू जस्टिस के बीच में जो लिंक है. So it's really inspiring what you're doing. Thank you for sharing, Rohit. I would also I would just end this with one question. आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, चैट बॉक्स में लिखना, प्लीज अनम्यूट मत करना कि अगर मान लो अगर मान लो कि आज हमारे पास कोई भी फ्रेश केस आना बंद हो जाए। धीमान भाई ने एक बात बोली, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस अगर किसी को लेट मिले तो इसका माना, इसको ये मानते हैं कि जस्टिस मिला ही नहीं उनको। तो अगर आज मान लो देश में केस फाइल होना बंद हो जाए एक बार के लिए, तो हमें कितना साल लगेगा बचे हुए केस को सॉल्व करने के लिए जो अभी तक पेंडिंग है? एक रफ नंबर लो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मान लो आज से कोई भी फ्रेश केस फाइल नहीं होगा, कोई भी ताज़ा केस फाइल नहीं होगा, और भारत के जज सारे पुराने केस को सॉल्व करेंगे, तो आपके हिसाब से कितना समय लगेगा उन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए? अच्छा, कुछ लोग बोले 10, कुछ लोग बोले 10, कम से 100। कम 200. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ साल पहले कहा था कि हमें 464 साल लगेंगे पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो ये सवाल जो है 464 साल, वो खाली इसलिए नहीं है कि सिटीजन्स को जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आई एम जस्ट लीविंग इट अप टू विद दिस थॉट, देवान। That is a mind-blowing fact, Rohit. I mean, and also kind of depressing. मैंने तो 200 बोला, thinking must be above the line, not even halfway there. Thank you for sharing that. And yeah, I think everyone in the chat, सभी ने कम guess किया than what it actually was. Okay, we'll come back to that. प्रियंका, आपके स्टोरी पे को कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक जैसे रोहित ने भी वन ऑफ द प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई करी है, एनयूजेएस से. वैसे ही आप मिरांडा हाउस में थे, और उसके बाद आप इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से भी आपने पढ़ाई करी है. तो मैं जानना चाहूंगा कि सीतामढ़ी से निकलने के बाद ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाई करना, लाइक, इसका क्या असर रहा आपकी जर्नी पे? देखिए एंड तो सिर्फ कॉलेज ही नहीं, मैं एक्चुअली आपको कहूंगा कि आप राइट अप टू आपके कानपुर तक, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कानपुर तक जो आपकी जर्नी रही, जिससे पहले, जिसके बाद आप गांव वापस, वहां तक की जर्नी आप अगर शेयर कर सके तो. गांव से निकल कर मिरांडा हाउस पहुंचना, और मिरांडा हाउस में मैंने 3 साल बिताया अपने ग्रेजुएशन के लिए। और एक गांव की ग्रामीण लड़की जब एकदम ऐसे बहुत सेलिब्रेट माहौल में जाती है तो बहुत कॉन्शियस रहती है, बहुत नर्वस, सेम मैं भी थी। और काफी स्ट्रगल हुए भाषा को लेके। मुझे हिंदी आती थी, वहाँ पे हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी क्योंकि गाँव में मेरी पहली भाषा हिंदी नहीं थी। और यहाँ का अंग्रेजी है तो उसका भी संपर्क रहा था थोड़ा सा। मतलब जैसे दोस्त बहुत कम बन रहे हैं तो कभी संपर्क रहा, लेकिन और मिरांडा हाउस की जर्नी काफी मुझे जोड़ा है और काफी सिखाया है मुझे, मेरे जीवन में काफी अपलिफ्टमेंट प्रियंका, हुई है। आपके आई थिंक काफी डिस्टरबेंस आ रहा है. जस्ट 1 मिनट. आई यू, इफ यू आर अब आ रही ट्रैवलिंग, है आवाज?
Can you say background noise काफी ज्यादा आ रहा है? मैं बोलती हूँ Yeah, I think we are all struggling to hear in the chat also. एक और बार कोशिश करते हैं, आइए. आई थिंक थोड़ी आवाज आएगी, मुझे कहीं पहुंचने में बस 10 मिनट लगेगा। आई थिंक प्रियंका आप एक काम कीजिए. आई थिंक लक्ष्मी इज राइट. आप एक बार वीडियो ऑफ करके कर दीजिए. मे बी आपका नेटवर्क थोड़ा सा. या, थैंक यू. ओके, अब जा रही है बात। हेलो। कंटिन्यू. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. हाँ, तो जैसे कि जब 3 साल मैंने जो मिरांडा हाउस में बिताया है, डेफिनेटली वो मेरे जीवन का मेरे बहुत कि बिहार से आके, बिहार के छोटे से गांव से आके वहाँ पहुंचना, और वो जीवन में काफी कुछ जोड़ा है। और दिन रहे कि कानपुर में, तो मैं जब ग्रेजुएशन में 2016 में कंप्लीट करी, और उसके 1 साल का ऐसे ब्रेक था, फिर मैं अलग अलग लिटरेचर वगैरह पढ़ रही थी। और 2018 से 20 मैं कानपुर के गाँव में रही, मतलब तो वहाँ पे प्रियंका, ISP में मैंने सॉरी, पॉलिटिशियन सॉरी, वगैरह एक सेकेंड. I I don't think your voice is very clear. I think chat पे भी लोगों को, can somebody tell me आपको अगर सुनाई दे रहा है तो. क्योंकि I think वो पीछे से हवा हवा की वजह से, या पीछे कोई बातचीत कर रहा है उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है. तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि हमारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है. तो आप जब पहुंच जाएंगे आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा. तब तक हम बाकी दोनों से बातचीत कर लेते हैं. विल कंटिन्यू ऑन देयर स्टोरी इफ दैट इज ओके. ओके, 10, आई थिंक 10 हाँ more ठीक है, minutes. हाँ, let's come back to your story because I really want to complete your story as well. तो आप पहुंच जाने से आप मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा. So we'll go back to Smriti and Rohit for the meantime. Smriti, coming to Mind Matters, right? You went to college and decided to start an organization dedicated to mental health awareness, breaking stigma. What enabled you to do it? What really pushed you towards it? Okay. One is that's what I realized a lot of people facing the same issues and nobody was doing anything about it. Like there are NGOs and organizations dealing with the after effect of mental health after we are diagnosed with depression and anxiety, but very few, very minimal people are working towards the prevention of it. So I don't, especially with mental health, I don't know why things are fixed only after something happens, only after someone, commits suicide or someone goes through something. So when all this can actually be prevented. So that's the whole concept that pushed me into the prevention before something happens, before someone takes their lives. We stop it way before and don't let people get into a different stage of it. And would you like to share what is exactly that Mind Matters is doing to address this? Yeah. So basically how in school or college we're taught different subjects, right? Like I think we can calculate, we can do addition, we can do subtraction because somebody taught us this. We know about science because we had a subject in school. Similarly, what we do in Mind Matters is that we have done our research when we are trying to build mental and emotional health as a subject. So over 2 years, we have done our research and for different age groups, we have understood the different types of problems they face. And we're teaching it as a subject. We're actually telling this is the problem, this is how you need to deal with it. And at a point where gets intense, you need to approach a professional. So, Hmm. I think teaching brings in awareness and that can stop or prevent a lot of other issues. So that's one thing. And mainly when we go to, I'd say government schools or I'd say more of rural areas, they don't have the understanding of mental health. So what, they just, maybe the emotion that they face is anger and frustration because they don't know how to channelize things.
People who have maybe Instagram or in the urban side of the society, we at least have, I think, channels to like share all these things. But there it's like more bottled up. And we also understood that sometimes that can lead to higher crime and violence rates more towards those regions. So that's another like insight we got. And we're also teaching that now through mental health. If you control your anger and frustration, we can also relate it to reducing like the violence and the crime rate. So that's another thing that pushes to continue this. And would So love it's to hear. not a problem just in I Nova. mean, I'm sure you guys have had some really amazing stories that you've come across. Would love to hear some of them at some point. And I think one thing that you mentioned about the lack of awareness, it's the same with what Rohit was saying, right? It's just in the case of legal aid and justice, it's lack of understanding, lack of awareness because of the technicality. In this case, it's the lack of awareness because, it is just such a space which has never been given the due attention. So, Smriti, this is a question for both of you actually. I would love to know when you started your own organizations, like, did you do it single-handedly firstly? And like, and if not, then who were the biggest, contributors to your journey in the way, apart from, your parents and all? Like, I'm talking more about your peers, आपके दोस्त वगैरह. What kind of a role did they play? What kind of a reaction did they have in the first place? Was it encouraged? Was it like seen as, what are you doing in with your life sort of a thing? Okay, so I basically started this as a project. It was an initiative. It was never meant to be an organization from the start. I was like, I want to make a change. I'll do it. I started it alone. Then I made a team of 5 people, and now we're 92 of us. So that's how like You the went from team 5 to grew. 92. Yeah, in 2 years. Wow. So yeah, that's the journey of it. And I think there were people who were like doubting what I was doing, randomly running around and conducting these sessions. But the thing with like making a social change, doing social work is that you know you're doing good. It's going to help at least one more person, like except for you. So you do it. Like you don't hear what others are saying, what you're doing good and just focus on that. I think that was my thing. And in terms of inspiration, honestly, I did not know where to start. I knew I wanted to do some change. I didn't know where to start. And 5 to 6 years ago, I was added on the Solve Ninja WhatsApp community group. I saw so many people, sharing what they're doing. It was during COVID mainly when I was added, and there was another Solve Ninja, Shahid Afridi, if I'm not wrong. And he used to keep posting the work he was doing. आप लोग बाकी लोग प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए. Can the admin and the hosts? आलोक जी को म्यूट कर सकते हैं क्या कोई? Okay, Smriti, please continue. Yes. Yeah, so basically on the group, and I saw a lot of people sharing things, right? I think that inspired me, like, and that gave me some insight. And definitely the mentors, like, deep benefit. I didn't know where to start. They were like, find a problem. You will definitely start from there. And that's true. There's so much around us. And yeah, I think that's how my journey and inspiration feels. So I think Okay. even Rohit can share the same bit. Amazing. I mean, mentors and peers are two of the groups which I think, once you are out of your home and like studying and all that, these are the two groups which really they can either be your cheerleaders, some can also be detractors, I'm sure, depending on whether you meet the right people or not. We'll come to that. I know, Smriti, you have something to share there. But Rohit, what about you? आपके केस में did you ever like have what kind of reaction did your peers and others have around you when you decided to quit law and also when you decided to start your own initiative? I think I agree with
Smriti's approach also, that like even one person's life getting slightly better in itself is also change. लाइक वी नीड नॉट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा पहाड़ ही गिराना है या फिर बहुत पूरी दुनिया ही चेंज करनी है। मे बी इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विद जस्ट 1 पर्सन। उनकी एक इंसान की लाइफ में भी अगर 1% भी चेंज आ रहा है, दैट इन इट सेल्फ इज अ गुड इनफ इंडिकेटर। सो इन टर्म्स ऑफ माई पियर्स, आई हैड अ गुड सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल्सो प्रिविलेज, बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि तुम्हारे साथ दोस्तों का खड़े रहना, सपोर्ट करना, वो काफ़ी मैटर करता है। एंड जब मैंने लॉ फर्म छोड़ी थी तब मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे। लाइक एक ग्रुप है आगामी करके, उनके भी काफ़ी सारे दोस्त थे जिन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा बहुत सारे युवा लोग थे जिन्होंने खुद से अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे। बट एक व्यक्ति जो काफ़ी सपोर्टिव रहा ऑल दिस वाइल वाज अंशुल, जो यूथ की आवाज़ चलाते हैं, जो एक अपनी प्रोग्राम भी चलाते थे एक टाइम पे। तो उन्होंने उन्होंने बस ये बोला कि उन्होंने एक चीज़ बोली थी मेरे को चेंज, मतलब जब मैंने स्टार्ट की, बस स्टार्ट कर दो, थिंग्स विल इमर्ज आउट। मतलब कि तुम शुरू करो काम और अपने आप चीज़ें होती रहेंगी, और हो रहा है। मतलब ऐसा, मतलब एक चीज़ जो मैं सब लोगों को बोलता हूँ, तुम सभी लोगों को बोलूंगा कि तुमने जो भी प्लान किया है फ्यूचर के बारे में, वो नहीं होने वाला है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इससे कुछ अलग होगा, और जो अलग होगा वो भी अच्छा होगा। और दैट्स हाउ लाइफ ऑल्सो वर्क्स, राइट? कि मतलब लाइक हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इस एज तक ये करना है, इस एज तक ये करना है, बट चीजें नहीं वर्कआउट करती, चीजें कुछ अलग ही हो जाती है, समथिंग एल्स इमर्ज आउट ऑफ इट, एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। बट टू स्पेसिफिक योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, एंड पीपल डू गेट सरप्राइज। फाइनेंशियल क्राइसिस तो देखो एक बहुत नॉर्मल पार्ट है अगर आप सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में काम करते हो तो। बट एट द सेम टाइम, हैविंग अ गुड सपोर्टिव community is also have been really really helpful for me, I think. अभी अभी ऑफ कोर्स थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है, ऐसे ऐसे संगठन बढ़ता जाता है और बहुत लोनली जर्नी होती है। बट देन टॉकिंग टू योर ओल्ड फ्रेंड्स ऑलवेज रिमाइंड्स यू कि द सिंपलर टाइम्स व्हेन you are not solving world's crisis, you are just so sometime it also feel कि simpler times is also needed once in a while. Yeah. Yeah, fantastic. And very endearing to hear about other founders and जो सोशल सेक्टर में बाकी लोग भी काम करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को हेल्प करते हैं, पुशिंग पीपल फॉरवर्ड. इट इज अ कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ environment for sure, right? And Smriti, I'm sure as you go forward, there'll be many more such people, founders. Maybe Rohit can help you one day figure out certain things, right? That's all your community is about. ठीक है, अगर आप ग्राम चेतना आंदोलन के बारे में अगर आप एक बार शेयर कर सके, ठीक है. आई एम सॉरी बट वी हैव टू थिंक हाँ, अबाउट टाइम अ लिटिल बिट. मतलब डेफिनेटली रोहित, हम पर्सनल कॉल पे भी आके बात कर सकते हैं अगर यहाँ वक्त नहीं है तो। और लेकिन हाँ, मतलब आई थिंक कम समय में साझा करना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अ, हम्म, तो जैसे मतलब ग्राम चेतना कैसे शुरू हुआ, तो जब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने मतलब गांव में लौटी और लगा कि एक तो स्पेस नहीं है हमें, मतलब वो स्पेस है जहाँ पे एक अच्छे लीडरशिप का स्पेस नहीं है। लोग अच्छी लीडरशिप की बात करते हैं लेकिन उसको प्रोत्साहित नहीं करते। और जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत डिमीन करेंगे। इज इट जस्ट मी? प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही. Even I'm not able to hear them. आप जा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी. ओके। तो इन सारी मतलब कि हाँ, मतलब लोग अच्छा लीडरशिप तो चाहते हैं लेकिन उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मेरी इस जर्नी में मेरे भाई तो थे, सबसे मेरे बड़ी जो स्ट्रेंथ मेरी रही है मेरी माँ रही है। मतलब उनका यही कहना है कि तुम्हें अगर एक वोट भी आए तो तुम्हें कंटिन्यू फाइट करना है, और अभी भी। तो बहुत पावरफुल है मेरे लिए। और इसी में आए कि अब जब तक आप एक अपने सोसाइटी में एक एग्जाम्पल के तौर पे काम नहीं करेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं देंगे, लोग आपको लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो यही है कि जब से ही हमने अपनी कम्युनिटी में देखा कि कम्युनिटी बात तो हर चीज से करती है, उनको सब कुछ चाहिए। उनको अच्छा रोड चाहिए, पानी चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, लेकिन वो आएगा कैसे इस पे बात ही नहीं करनी, उनको अपनी पार्टिसिपेशन ही नहीं देखनी है। तो कैसे उनकी पार्टिसिपेशन हो अपने गांव में, कैसे वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो के कुछ कलेक्टिव करे, और उसमें से ही कोई लीडरशिप निकले जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन को लीड करे।
तो ग्राम चेतना इसी आइडिया पे काम करती है कि कोई भी इशू हो, लाइक क्लाइमेट क्राइसिस की इशू है, मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस है, एटलीस्ट हम तो बात करें। जब तक 10-5 लोग एक साथ आके इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम उसका कुछ कलेक्टिव सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं। और सॉल्यूशन कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकता है, सरकार हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं ला सकता है। मतलब वो लाती है, लेकिन उसका हिस्ट्री क्या रही है वो हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिनको रोज उस जगह पे जीना है, जब तक उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक एक धरातल पे चीजें नहीं दिखेंगी। तो हम वही है कि जैसे हमने वाटर पे काम करना शुरू किया पिछले और साल, तो हम छोटी छोटी कम्युनिटी में बात करना शुरू किया, उसको अलग अलग जगह का एग्जाम्पल कि यहाँ पे इस प्रकार से काम हो रहा है। तो लोग में वो अवेयरनेस आई कि हाँ, एक जगह जगह पे बैठ के हम बातें करेंगे, लेकिन फिर हम कलेक्टिव कैसे ग्राम सभा को, वार्ड सभा को प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटी इकाई पंचायत है, हम उसको कैसे सस्टेन करवा सकते हैं, उनसे कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और फिर हम अच्छे नेतृत्व के साथ उसको कैसे लीड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू, और उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो अलग अलग मतलब ये को लीड करें इंस्टीट्यूशन को। तो हम चेतना चौपाल करते हैं मोबिलाइजेशन के लिए, तो हम उसमें डायलॉग करते हैं, फिर कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं, और उस पे हम कुछ कुछ उनको कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। तो हम दक्षता दिवस है जहाँ पे हम उनको कुछ ऑफर करते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें हम कोई मेंटोर आके उनकी जो एक्सपर्टीज है उस पर वो बातें करें। और मतलब यही होता है, और बेसिकली हम फोकस करते हैं कि कैसे वार्ड सभा और ग्राम सभा हो, मतलब लोग एक जगह आके, बंच ऑफ पीपल आके उसको करवाए, उसको मॉडरेट करे। और वो बहुत पावरफुल फुल तरीके से हम कर पा रहे हैं। पिछले एक साल में हमने मतलब पिछले साल 26 नवंबर को हमने ग्राम सभा मतलब वार्ड सभा ऑर्गेनाइज किया, और बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। मतलब एक कल्पना होती है कि वार्ड सभा हो ही नहीं सकती, उसमें वो ऑन पेपर बहुत अच्छा से होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड की बात करो तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन उसको हमने बहुत अच्छा से होल्ड किया, अच्छे रिसर्च और इन सारी चीजों के साथ, और पूरा वॉलंटियर बेसिस पे। तो काफी सुंदर प्रभाव किया उसी कलेक्टिव की हिस्सा मतलब रही कि हमने, और इस बार 26 नवंबर के एक गाँव को अच्छे से साफ कर पाए। लगभग 6 दिन मिला के 45 45 वॉलंटियर के साथ, सब अपने इनिशिएशन से हो पाया। तो यही है। और प्रियंका, आप ये सारी चीजें अभी सीतामढ़ी में ही चल रही हैं, आप जिन चीजों की हाँ, बात कर रहे हैं, या ऑल अक्रॉस बिहार आपका प्रोजेक्ट? अभी हम सीतामढ़ी के 2 ब्लॉक है हमारा, सोनबरसा और परिहार, तो लगभग हम 47 पंचायत में हमें अपने काम को बढ़ाना है। तो अभी हम 2 पंचायत में फोकस्ड रूप से काम कर रहे हैं। एक जो मेरा पंचायत है जहाँ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और एक हमारे जो को फाउंडर है उनका पंचायत है। तो अभी अन्य लोग के पंचायत में हम डीपली थोड़ा काम कर पा रहे हैं। मैं रोहित, unless you have questions I would like to ask, but I'll wait for you because you wanted to listen to her story. आप अगर कुछ पूछना चाहे, रोहित, are you still there? हाँ, you're on mute. You're on mute. Sorry, it was not allowed. नहीं, I think I'm good. I'll chat with her separately. या But आई this was थिंक really आई helpful. थिंक Thank you. अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है आप दोनों को, जी, आप आपस जी, में एक दूसरे के काम के बारे में जान सकें। प्रियंका, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो बातें बताई, आई थिंक इस लेवल का आप लोग काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी को मोबिलाइज करके उन्हें एम्पावर करने की, कैपेसिटी बिल्ड करने की। यहाँ जो हमारी जो ऑडियंस है, राइट, आई थिंक मोस्टली क्लास 9th 10th 8th, शायद उससे भी यंग, मतलब के टीनेजर्स बहुत सारे हैं। तो आप जिस तरीके का काम कर रही हैं अपने कम्युनिटी के साथ, राइट, इस एज से कैसे कोई शुरुआत कर सकता है? किस टाइप के एक्शंस लेकर, मतलब कुछ भी अगर आप उस बारे में बता सके। और मैं पूरे ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज प्रियंका को ध्यान से सुनिएगा एक बार, है ना। चैट में क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रियंका प्लीज, आप म्यूटेड हैं। ओके, मतलब बार, हाँ, अब जा रही है आवाज मेरी? हाँ जी। हाँ। तो हम किस
एज से मतलब शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर अपने मतलब हम स्कूल में हैं, लाइक 10th स्टैंडर्ड की स्कूल में हैं, और उस समय तक हमारी इतनी समझ हो जाती है कि हम अगर जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है हम उसमें वोकल हो। तो हमारे काम का जो कोर एक चीज है कि हम कैसे कोई चीज देख रहे हैं जो हमारे हिसाब से सही नहीं लग रहा है या सही भी लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो उसको हम प्रोत्साहित करें, और जो चीज सही नहीं है तो कैसे हम उस पर सवाल उठाएं। और सवाल उठाने का कोई भी एक एज लिमिट नहीं है ना। अगर घर में 5 साल का बच्चा भी उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो बहुत वोकली तरीके से आवाज उठाता है। और क्योंकि मैं एक बच्चे को पलते हुए देख रही तो उसको मैं देखती हूँ तो उसमें वो अग्रेशन होता है कि दीदी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे नहीं करो। तो उसकी कोई एज एक लिमिट नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोली तो मैं अपने स्कूल के दिनों की याद करती हूँ कि मैं बहुत शांत थी। मुझे बहुत सारी चीजें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बहुत साइलेंट रह जाती थी कि ठीक है मेरा काम नहीं, उतनी समझ नहीं थी। लेकिन अभी है कि हम थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड। I quickly want to do a sense check in this room. बाकी लोग कहाँ गए? सब लोग सो गए? हम तो नहीं। ऐसे आज ही हम यही है। अच्छा, नहीं। चैट पे लिख दो। आप लोग अनम्यूट के मत करो, सब एक साथ मिलकर अनम्यूट करेंगे तो बस यहाँ पे बहुत केओस होगा। आप लोग कुछ चैट पे बताओ। लिखिए, एनर्जी लेवल कैसी है अब, 1 से 5 में बताओ। वाह, अभी तक 5 से कोई गिरा ही नहीं। अब मुझे 2 नहीं दिख रहे, एक भी। अच्छा, एक 2 दिख गया। मिस्टर ओ, हमारे स्पीकर साहब ने 2 लिख दिया है शायद। बोलते बोलते थक गया, पानी पी लीजिए रोहित जी। लेकिन बाकी सब 5 से नीचे उतर ही नहीं रहे। वेरी गुड, वेल डन। किसी ने बहुत सारे नाइन्स लिखे, 999 प्लस इन्फिनिटी। बहुत खूब। मुझे यार लगता है जो इतना एक एनर्जी एक लाते वो कहाँ से मुझे हो? लगता है एक और दो वाले हैं वो शायद चैट बॉक्स में रिप्लाई भी नहीं कर रहे, वो तो थक चुके हैं शायद। आपने तो किया, आपने किया। थैंक यू। रोबर्ट प्लीज चार्ज। बट नाइस, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू एवरीवन आंसर करने के लिए। अगर ऑडियंस में आप लोगों के पास कुछ, किसी के पास कोई सवाल है, आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो। अब हम 1 2 सवाल लेने के लिए हमारे पास टाइम है। तो अगर कोई कोई सवाल पूछना चाहता है इनके काम से जुड़ा हुआ, या फिर आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ, तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को अनम्यूट करना था ना। चलिए, अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ अनम्यूट करने का। कौन शुरू करेगा? उल्लास, आप कुछ कहना चाहोगे? पर आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, तभी मैं अलाउ, मतलब मैं आपको बुलाऊंगा ये करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा नहीं, उन्होंने, उल्लास ने अपना हाथ नीचे कर लिया। ऐश्वर्या, वुड यू लाइक टू शेयर? यस सर। प्लीज आस्क योर गुड इवनिंग क्वेश्चन। सर। गुड इवनिंग। सर मुझे रोहित सर से एंड स्मृति मैम से दोनों से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर रोहित आप सर। किसी से भी पूछ सकते हो, अप टू यू। आप हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में कंफर्टेबल है उसमें पूछ सकते वट हो। एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, कोई भी लैंग्वेज। यस सर। रोहित सर। जी जी। सर आपको इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा आप कठिनाई आप फेस करे क्या है सर? आप कैसे इंग्लिश सीखे बोलने में? तो ऐश्वर्या, सबसे पहली चीज जो मेरे को लगता है, जो पिछले 10 साल में मैं सबको ये बोलता हूँ कि इंग्लिश सीखने में सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहले तो उस भाषा को इतनी ताकत मत दो कि अगर नहीं आती है तो हम पीछे हैं। सबसे पहली चीज, हाँ मार्केट इंडस्ट्री में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरत होता है, पर उसको एक अलग एक से भाषा की तरह ही देखो। यू माइट बी फ्लुएंट इन तमिल, मराठी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट दूसरी चीज़ ये है कि बेशरम बन के अंग्रेजी में बात करो दोस्तों के साथ। दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लर्न। गलत इंग्लिश बोलो। एक चीज़ जो इंडियन इंडियन मेंटेलिटी में हमें स्कूल से सिखाया जाता है वो ये है कि ग्रामेटिकली इंग्लिश सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए। बट अगर आप गोरे लोगों को, विदेशी लोगों को देखोगे तो वो बहुत ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं। वो बस बोलते हैं, बात करते हैं। भाषा का मेन उपयोग इसलिए होता है कि हम कम्युनिकेट कर सकें।
जैसे तुमने मुझे कम्युनिकेट कर दिया सवाल, है ना, तुमने वो कर दिया। इंग्लिश का भी यही रोल है कि हम कम्युनिकेट कर पाए। शायद शुरू में इंग्लिश के वर्ड्स गलत होंगे, ग्रामर गलत होगी, शायद कुछ कुछ जगह हम लोग अटकेंगे, शायद बहुत बार अटक के अ करते रहेंगे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके होंगे। बस वो बेशरम रहो कि है ना भाई, मैं तो गलत बोलूंगी, तुम हंसोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्राई टू लर्न। राइट। और धीरे धीरे थोड़े बहुत, आई थिंक एक चीज जो बहुत अच्छे से हेल्प करती है वो ये भी है कि कुछ कुछ आसान इंग्लिश मूवी देखो, शायद कार्टून की पिक्चर देखना शुरू कर लो थोड़ी बहुत, सबटाइटल लगा के एक नीचे लिखी आती कभी कभार, तो वर्ड पढ़ते पढ़ते मूवी देखना शुरू कर दो। तो आई थिंक वो उससे क्या रहता है कि हमारी विजुअलाइजेशन की शक्ति, जो हमारा दिमाग जो इमेज बनाता है, वो भी थोड़ा बेहतर होता है अंग्रेजी में। तो फिर जो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनके दिमाग में भी इंग्लिश के थॉट्स चल रहे होते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस भी शायद मूवी से, दोस्तों से बात करके ही सीखा है मैंने। तो अगर आपका ये जवाब सही है तो। मैंने भी ऐसे ही हिंदी सीखा था। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन ऐश्वर्या। आई थिंक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था, बहुत लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिकॉज इंग्लिश का हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा इंग्लिश को भाव दिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी सो इम्पोर्टेंट, बट देन at the end of the day the point of a language is just to convey your whatever you want to say, right? It doesn't matter how well you speak it. और कोई है? anyone else? दीपिका, you want to ask a question? आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ, मुझे पूछिए। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मगर मुझे एक प्रस्ताव देना है जो मैं दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए, लेकिन आपके पास 40 सेकेंड्स है, ठीक है? ओके। हमारे यहाँ पर हम आसाम के लोग हैं, असमिया हमारी भाषा है। और यहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारे आसाम के जल्लूस मिलकर एक असमिया भाषा में बोलने वाला मीटिंग शुरू करें, तो कैसा रहेगा? ओके, आई थिंक दीपिका आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आप शायद आप सारे चेंज मेकर अड्डा में आप आते भी हो, इसलिए उसके लिए पहली बात थैंक यू, है ना। दूसरी बात, आपका प्रस्ताव अच्छा है और हम बिल्कुल करेंगे असमीज में अड्डा, क्यों नहीं, है ना। हाँ। काश मुझे आती असमीज, लेकिन मैंने कभी सीखी नहीं है, मैं कभी रहा नहीं हूँ वहां पे। तो एक बार हम जरूर करेंगे, ठीक है। आप जलदूत के जो भी है यहाँ पे टीम से, यू कैन टेक नोट, सो वी कैन डेफिनेटली डू एन अड्डा विच इज प्योरली इन असमीज, ठीक है। थैंक यू दीपिका फॉर योर सजेशन। बट आप आते रहिएगा हर चेंज बाय में। बाय। इट्स वेरी गुड टू सी यू पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पेसेस, सारे स्पेसेस में आपको देखकर अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेटर में पढ़ाई करके। नेक्स्ट भाग्यश्री, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई एम सीइंग फ्यू हैंड्स, 3 हैंड्स, बट आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। नहीं, हाथ नीचे कर लिया। रोहित मेती, बहुत बहुत मजे कर रहे हैं आप, है ना। आइए आइए, बताइए आपका क्या सवाल है। सर मतलब ये नहीं कि मैं, मुझे एक सवाल पूछा था। अगर ये चीज में का अड्डा है ना, वो कौन दौड़ाते हैं और इसके कैसे? எப்போ மாத்தாल விடுங்க मेरी म्यूट पे ना है, हाँ। रोहित, आप अनम्यूट करके बोलिए, हाँ। सर मतलब मुझे पूछना था कि आप सब इसे मैनेज कैसे करते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, मैं क्लास मॉनिटर बन जाऊं तब भी दिमाग फट जाता है, कोई भी नहीं सुनता, सब बच्चे आदत में आ जाते हैं। आप कैसे मैनेज करते हो, मेरा एक सवाल है। हम कैसे मैनेज करते हैं चेंज मेकर अड्डा? एक एक ना एक जादुई बटन आता है, म्यूट बटन करके, बहुत म्यूट स्ट्रेस ऑल होता है करके ना। आता है, उसके उसके थ्रू हम लोग करते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, जो लोग आप शायद देख भी पा रहे हो, जो लोग छोटे छोटे टास्क करने में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग चैट में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में। मैंने एक दो बार कन्नड़ा भी देखा था। कोई कोई मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, कोई वहां पे लोगों को म्यूट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे टास्क ऐसे डिवाइड करके हैंडल हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गणेश, पर आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी गणेश। थैंक यू। हाँ मेरा जी। क्वेश्चन प्रियंका मैम से है सर।
हाँ, आप सवाल पूछिए प्रियंका। आई डोंट नो इफ प्रियंका इज बैक, लेकिन आप सवाल पूछिए। उनका एजुकेशन क्या हुआ है और उसका ड्रीम फुलफिल हुआ क्या नहीं? ओके, मैं हूँ यहाँ पे और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आज से लगभग 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और अभी मैं एक चुनाव कॉन्टेस्ट कर चुकी हूँ और अभी अपने ही ग्राम पंचायत में और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रही हूँ। तो लगभग मेरे जो सपने थे उसको मैं पूरा करने की कोशिश में हूँ। मैम आपका एजुकेशन क्या हुआ है? आई थिंक डिग्री है। मेरा education- हाँ, हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी। ओके आर्ट्स मैम, एंड फिलोसफी। हो गया आपका क्वेश्चन आंसर गणेश? ओके, वेरी गुड। और किसी के पास कोई सवाल है? यस हमारी सर। को किसने यस बोला? ऐश्वर्या सर। हाँ हाँ, ऐश्वर्या प्लीज, सेकंड क्वेश्चन। स्मृति मैम, अब हमारा फ्रेंड है ना, वो भी बहुत मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं क्या टिप्स दूँ उनको कि उनको मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए? Okay. So can we help with translation if that's या okay? ऐश्वर्या, आप Uh, यू आर ओके विथ इंग्लिश या फिर can आपको you- हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है? हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो स्मिति को आंसर कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं या फिर कोई और आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है? Because Smriti ओके is not comfortable with Hindi. Smriti, you got her question. One of her friends also is dealing with mental health issues. What advice do you want? Can she give her? Okay. Two things I will say. One is the concept of journaling, which is take a book or a paper, write down what you're feeling, and how, if it's a problem, how you can solve the problem. That's the first option. Second, if she wants, I can connect them with a counselor or a therapist, and they can help out if needed. Or I can speak to a friend once and then understand the background and connect them. ऐश्वर्या, स्मृति हाँ ने सर, समझ में आ गया सर। आ गया? उसको हाँ सर। आपने जर्नलिंग वाला पॉइंट सुना, पहला पॉइंट? हाँ सर, उसको एक पेपर में क्या प्रॉब्लम थे सब उसका सब फीलिंग्स को एक बुक में लिखवाना चाहिए, तब क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचना चाहिए। देखो, देखा लैंग्वेज का जादू। आपका पहला क्वेश्चन था ना? हाँ सर। अब आप कंफर्टेबल नहीं भी हो, लेकिन आपको पॉइंट समझ में आ गया है ना? यही तो हाँ कह रहे थे रोहित। ठीक है, वेरी गुड। भाग्यश्री, आपका हाथ फिर से, आपको कुछ कहना है? थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। बताइए। सर, व्हाट अबाउट योर एजुकेशन सर? Whose education do you want to know about? योर योर्स सर। Oh, my education. I studied long back. I forgot what I studied. No, I did my engineering. So I'm an engineer. Yes. थैंक यू सर। You're welcome. Okay, I think अगर आपके पास और भी सवाल है तो आप लोग। अच्छा, भरत सर का हाथ उठ गया है। हाँ, तो ये मेरा इंटेंशनल है या नहीं मुझे पता नहीं। हाँ जी। हाँ, सो मेरा एक सवाल है समृद्धि से। लाइक आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, लाइक मेंटल हेल्थ होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मेंटल हेल्थ, एंड देन हाउ डू इवन आई गेट टू नो दैट समबडी इज गोइंग थ्रू द मेंटल हेल्थ इशू। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, जैसे मेरा स्टूडेंट है, दोस्त है मेरे, तो मुझे कैसे समझ आएगा कि वो लाइक द पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट? फर्स्ट, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, सो आई थिंक दीज टू थिंग्स इफ यू कैन शेयर बैक, सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। Okay. Mental health is basically how we feel and react. It's how our feelings affect our behavior. If I have to summarize it in a line, what we feel, sometimes we react in a bad way. So, observing what we're feeling and how we're reacting, or how someone else is feeling and how someone else is reacting, determines their mental health. So, I think that's the first thing to understand. To identify whether somebody else, your friend or relative, whoever is going through a mental health issue, is there'll be a change in their behavior.
somebody who is very happy all the time, who keeps talking, or in classes they keep participating, suddenly they become very silent. For 2, 3 days, they don't talk a lot, they don't participate in classes, and you'll see a change in the behavior. I think that's one of the Yes, most ma'am. prominent signs to understand they're disturbed about something. That's one of the things, but it also differs. Some people will become overly happy because they want to fake it that they're happy, but inside they're going through something else. So it's a very subjective aspect actually, depending on what kind of issue. Some people have depression will have different symptoms to identify. Anxiety is different. But I think on the like surface level, if we have to spot it, the change in their behavior will indicate most of the things. And also, it I think even it needs to be translated for the other members as well in Hindi. It might get Uh, too technical. I think somebody in the chat can do that because we have exactly 1 minute to close this space. And I'll request somebody, Priyanka or somebody who can write this, all the languages, just bring it on. There you go. हाँ, पूछिए. What about Smriti ma'am? Education, sir. Priti, you want to tell them about your education? What about Smriti ma'am's Yeah. education? I have studied BSc in psychology. So I've done my undergraduate in psychology. Okay. अगला Okay, सवाल. ma'am. Thanks. Anyone else has any questions? Uh, Samsung, Mr. Samsung, आप पहले अपना नाम बता दीजिए. Can you tell us your name, please? Else we will go to Alok. Yes, sir. Yeah. I want to ask a question for three. Ask. Smriti ma'am, Rohit sir, and Priyanka ma'am. What is your question? Ma'am, what you enjoy to do in your free time? Okay. What do you enjoy to do in your free time? We will one word answers. Okay, quickly. प्रियंका, आप शुरू करेंगे? मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ, मैं अपने घर में, मेरा एक छोटा सा भाई है, उसके साथ मस्ती करती हूँ और फिल्म देखती हूँ जो मुझे एक है, खासकर थोड़ी पॉलिटिकल टाइप फिल्म। वाह, क्या बात है. छोटे से भाई को अभी से आप ट्रेन कर रही हैं चुनाव के लिए. नहीं, वो मेरे से 27 साल छोटा है, तो उसके साथ मस्ती करने में मजा आता है। तो उसके वर्ड, वो कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्या सीख रहा है, उसको देखने में। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. रोहित जी, आप? मुझे शनिवार को बच्चों के साथ शाम में बात करने में टाइम पास करता हूँ बट मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ना क्रिकेट देखता हूँ फ्री टाइम में और लिखता भी हूँ मैं कभी कभार। वेरी नाइस. ओके, कल Hi, sir. कल तो बड़ा मैच भी है, देखना है हम और सबको. सच बोलना, सच बोलना। स्मृति, व्हाट अबाउट यू? I like watching movies or TV shows. Yes. टीवी टीवी शोज एंड Rather. मूवीज. आलोक, आपको क्या पसंद है करना फ्री टाइम में? सर, मुझे पसंद है ड्राइंग करना। तो आप ही कर रहे थे अभी ड्राइंग स्क्रीन के ऊपर? नहीं सर, मैं नहीं करता ऐसा, Thanks, sir. बट मेरे को लगता है मेरे माइंड में क्या है ना, उसको ड्रॉ कर दूंगा। वेरी वेरी गुड. कभी सर मतलब दिखाइएगा कार्टून आपके जैसे ड्राइंग ड्रॉ से. करना लगता है, जैसे अपना ओके ही सर। कुछ कार्टून बना रहे हो और उसे ड्राइंग करने में खुद ही मजा आता है, क्या क्या हो रहा है इमेजिन करने में ही हमें बहुत मजा आता है। रोहित ऐसे भी तो एक नंबर का आर्टिस्ट ही है, तो आज हमें पता चल ही गया. शुभम, आपका क्या सवाल है, पूछिए. हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे करें? वाह, ये तो काफी इम्पोर्टेंट और काफी मुश्किल भी सवाल है. मैं अच्छा, अगर आप किसी स्पेसिफिक से नहीं पूछना चाहते हैं, मैं पूछ लेता हूँ. प्रियंका, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? शुभम, आप कहाँ से हैं?
मैं कर्नाटक के बेलगाम से हूँ। बेलगाम से है। ओके, तो आप हिंदी से कंफर्टेबल हैं? यस सर, हिंदी से कंफर्टेबल। ठीक है। प्रियंका, आप एक बार बताएंगे एकदम सीधी भाषा में कि कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है किसी का? बिल्कुल, आपको जो काम करने में मजा आता है उसको करते रहना है, और गलतियां करते रहनी है, हमेशा सही करना है, इस दिशा में नहीं बढ़ना है। तो हम जितनी जल्दी और जितनी तेजी से गलती करेंगे तो उतनी जल्दी से सीखेंगे भी, और उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये है। और कैसे कि हम बाहरी दुनिया से जो जजमेंट आती है कि हमें कोई जज करता है जिससे हम बहुत खुद में दब जाते हैं, तो कैसे हम उसको लेट गो करें, मतलब छोड़ दें, मतलब उसका असर हम पे नहीं होना चाहिए। तो हम लेट गो करना सीखें और गलती करते रहना सीखें, तो उससे बिल्डअप होगी, मतलब हम सीखेंगे नई नई चीजें, देन जाके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रोहित, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? रोहित। आई थिंक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आई थिंक सबसे पहली चीज़ यही है कि अपने अंदर की झिझक को निकालें, जो मैंने पहले भी बोला है कि बेशरम बने। बट है ना, दूसरी चीज़ ये भी कि नई नई चीज़ें ज़रूर कोशिश करें, और किसी को भी उनकी बात पूरी करने दें। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये थी कि अपन लोग अपने से अलग सोचने वाले लोगों से बात नहीं करते, तो हमें पता नहीं रहता है। तो जिसके चक्कर में जब अपन नई चीजें आती तो क्यूरियस रहे, है ना, उत्सुकता बनी रहे, जो भी इंसान जो भी बात करता है। तो जब आप उत्सुक रहेंगे तो अपने आप ही आपको नए नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, जिसके चक्कर में अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस का अनुभव, अलग अलग अनुभव की ओर बढ़ेंगे। तो आई थिंक वो एक प्रोसेस है। बस खुला दिमाग और खुले दिल रखें लोगों से बात करते टाइम पे, ये एक जरूर बोलूंगा मैं। जो की तरह। Thank you, Rohit. Thank you, Priyanka. Niti, would you like to add to this treasure trove, or shall I go? Yes, just one small point. I think of previous times where you felt. So, Can you hear me now? Yeah. Okay. I was saying, think of previous incidents where you think you couldn't succeed. You thought you were going to fail, and you overcame that. You succeeded, and those incidents play a very important role.